अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम टेली क्लासरूम के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रसूल और मेरे साथ है हुमैरा शफी। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है अपने इस फेवरेट प्रोग्राम में। नाजरीन, यूँ तो ज़िंदगी में हम सब किसी भी तरह से कामयाब होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, तरक्की करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। पर हमें दोस्तों हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कामयाब होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है नाकामी। क्योंकि जब कभी भी हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं तभी हमें ये एहसास होता है कि कामयाबी कितनी कीमती है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट failure is just an event and not a person. And now let's talk about this program. As you all know that this program is the complete package, as we not only provide the best lectures on some important topics, but after deliberating the lecture, you can also ask us any question related to that particular topic on our telephone numbers, which are also scrolled down on your TV screens. And those numbers are 2481813 and 2481832. And indeed, you can also dispatch your suggestions and questions on our email ID, that is ggkteleclassroom@gmail.com. Exactly, ggkteleclassroom@gmail.com. You send us the emails and we will read them live in this live program. एंड आज जिस सब्जेक्ट को हमने शामिल प्रोग्राम किया है उसमें चांद, सितारों और सयारों की बातें होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आज हमने फ़िज़िक्स को चुना है और फिज़िक्स पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर सजाद अहमद मीर, जो कि पोस्टेड है एज सीनियर lecturer physics, Government Girls Higher Secondary School, Navata. Sir, a very warm welcome to you in the program. Thank you very much. And then for subject expert, we have with us today Mr. Pirzada Tahir. We are honored to have him, a veteran of physics teaching, and his last designation was as Joint Director School Education. Sir, a very warm welcome to you in the program also. In the later half of the program, you would have the major business to do because you would be answering all those trivial and not so trivial questions from the viewers. Then we also have the students. Yeah, friends, to make this program more interesting and beautiful, we have the students all the way from different schools actually, and a very warm welcome to all of you guys in this. A very warm welcome to the students. Lecture start करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आप तक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से पहुँचाया जाता है। और ये भी कि इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं हर मंगलवार शाम 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक, और हर वीरवार सुबह 9:10 से लेकर 10:10 तक। और ये भी कि हमें आपके ईमेल्स क्या इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है ddkteleclassroom@gmail.com. Sir, the stage is all yours. Have a great lecture. Thank you very much, and good morning and assalamu alaikum everybody. Walaikum assalam. Today's topic is electricity, but actually it's a very deep topic. I mean, there are various things in electricity, but I will touch here a concept of charge and try to clear the concept of charge to my dear students. And also, if time permits, then I will go to the potential energy as well. So first of all, let us start and see what is charge basically, okay? So I will try to explain these things in analogy with the gravitation, electricity in analogy with the gravitation, because we have already gone through the gravitation in class 9th, I hope so. So therefore, it will be easy for you to comprehend the things if I will take the things in analogy with the gravity, okay? So fine. First of all, let me clear you the word, the electricity. The basic here is the main topic is electricity. So what is electricity? It is actually a sort of energy as a result of the charge of particles, either accumulated, I mean statically accumulated, or dynamically constitute a current, electric current. So now we come to know, हमारे पास क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बेसिकली एक किस्म की a sort of एनर्जी है। किस वजह से आती है? चार्ज की वजह से आती है। वो चार्ज चाहे एक्यूमुलेटेड हो किसी जगह, और ये वो कोई किसी मोमेंट में हो, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट करता है। सो आइदर ऑफ द वे आपको पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो इट्स नाउ इट्स क्लियर टू यू, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। नाउ लेकिन मसला यहाँ पर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में जब मैंने डेफिनेशन दी, आपने बोला इट्स एक्चुअली ड्यू टू द चार्ज ऑफ पार्टिकल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ पार्टिकल। सो अगर चार्ज है तो वो चार्ज क्या है, इसलिए मैं आप उस चार्ज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो नाउ आई विल टेक हियर अ चार्ज
बट यू नो इस यहाँ पर मैं एनालॉजी में मैथ्स लेता हूँ, ठीक है, मैथ्स लेता हूँ. So anybody among you students, you might have gone through this also, that what is mass. You know mass जब हम explain करते हैं तब जाके हम mass को बोलते हैं this is an intrinsic property. जब कोई इंट्रांसिक प्रॉपर्टी का कोई भी फिजिक्स टीचर आपको बताता है दिस इज इंट्रांसिक प्रॉपर्टी, आपके जहन में फिर ये रहता है कि दिस इज ए फंडामेंटल क्वेश्चन, दिस इज ए फंडामेंटल क्वेश्चन. वंस फंडामेंटल क्वेश्चन फिजिक्स में उसका जवाब डायरेक्टली आपके पास नहीं आता है. अगर उसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे पास आ गया तब जाके वो फंडामेंटल नहीं रहता है, जो उसका आंसर है शायद वो फिर फंडामेंटल बन जाए. लेकिन इस वक्त जो आपकी लेवल है, मैं आपकी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी लेवल के हिसाब से मैं मानता हूँ कि दिस इज इंट्रांसिक प्रॉपर्टी. ओके, सो मैथ्स जो है हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरह मैथ्स इंट्रांसिक प्रॉपर्टी एक मैटर की होती है, उसी तरीके उसी एनालॉजी पे ले सकते हैं हम दैट दिस चार्ज इज आल्सो एन इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर. यानी अगर मैथ्स नहीं होगा, अगर मैथ्स नहीं होगा इसका मतलब है वो चीज एग्जिस्ट नहीं हुआ, वो दैट्स नोन एज द इंट्रांसिक प्रॉपर्टी. समझ रहे हैं आप? जी सर. इसी तरह अगर चार्ज नहीं होगा उसके अंदर तो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं वो चीज एग्जिस्ट नहीं हुआ. जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टार की बात ले, आप अर्थ की बात ले, आप ह्यूमन बीइंग की बात ले, आप किसी की भी बात ले, उसके अंदर मैस होता ही होता है बिकॉज वो एग्जिस्ट हुआ. दैट्स नोन एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. अब चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन आप लोग सोचते होगे तो हम तो चार्ज को नोटिस नहीं करते. बेसिकली जो हमारे पास मटेरियल दिखने को आता है उसमें जो चार्ज होता है वो बैलेंस्ड होता है. क्या होता है? बैलेंस्ड. उसमें वो बैलेंस्ड होता है. जैसे मैं एक एटम की बात ले लूँ, यहाँ पर एक एटम आपके पास ऐसे है, उसमें एक न्यूक्लियस पॉजिटिव और हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है इसके इर्द गिर्द, ठीक है, राइट. लेकिन अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज जो है वो जीरो बन जाता है. क्या बन जाता है? नेट चार्ज जो हमारे पास आता है वो जीरो आ जाता है, जीरो. यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब हम दिखने को नहीं मिलता, मगर इसका मतलब चार्ज नहीं, इसके अंदर वो नहीं हम बोल सकते. सो चार्ज इज देयर. आप समझ गए ना? दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. लेकिन जब आप इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, किस इस एटम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, इनकी कन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब का मतलब मेरे पास है इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की कोशिश करते हो. जब आपको वाटर मॉलिक्यूल कहीं से एस्केप कराना है वाटर से, आप क्या करते हो? उसको हीट एनर्जी देते हो. एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल वहां से एस्केप आउट हो जाते हैं ना, इट्स एस्केपिंग आउट. सो सिमिलर ऑन सिमिलर टर्म्स वी कैन डू हियर आल्सो. हम क्या कर सकते हैं? हम इसको एनर्जी दे सकते हैं. वेदर दैट एनर्जी हम फ्रिक्शन से दे यानी रबिंग से दे, वेदर वो एनर्जी हम किसी और चीज से दें, मतलब लेजर से. देयर आर सो मेनी थिंग्स बाय विच यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट दैट एनर्जी. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने नॉकआउट यहाँ से किया तो यहाँ पर एक वैकेंसी नहीं आई क्योंकि ये आपने बाहर निकाला, ठीक है. जब आपने ये बाहर निकाला यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहा. तो जब हम देखेंगे इसमें आप नॉन जीरो आ जाएगा, अब तो पॉजिटिव बन गया, अभी नॉन जीरो, तब जाके इसके नेट चार्ज पॉजिटिव बनता है. तो इसका ये मतलब है चार्ज होता ही होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है. अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने पहले बोला दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन. इसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा. देखिए दो बेसिक चीज, दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मैस एंड चार्ज. एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक बहुत ही फंडामेंटल फोर्स को जन्म देती है जिसका नाम हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. यू नो इट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. तो अगर हम इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करें, ये दूसरे फंडामेंटल फोर्स को देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आप समझ गए ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं. कितने हैं? 4. उसमें से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल फोर्स को जन्म देती है, दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दूसरे फंडामेंटल फोर्स को जन्म देती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. तो वर्ल्ड में जो है, जो हमारी दुनिया दिखती है, इट्स बिट कंपटीशन बिटवीन द टू. एक चाहता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैस की वजह से चाहता है कि ये श्रिंक हो जाए, इतना श्रिंक, अर्थ जो इतनी बड़ी है इसको हम एक छोटी सी स्फीयर में लाए. लेकिन दूसरा बोलता है कि नहीं, अगर जो जिस एटम्स के आप बने हो जब वो क्लोज आ जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, वो ज्यादा नजदीक भी आने नहीं देगा. सो इट्स अ काउंटर बैलेंस, इट्स अ काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन द टू फोर्सेस रनिंग इन द वर्ल्ड और इन द यूनिवर्स, हम बोल सकते हैं इन जनरल. आप समझ गए ना? तो ऐसे हम बोल सकते हैं. देखो ये दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दो फंडामेंटल फोर्स को जन्म देती हैं. अगर अब हम डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो, लेकिन अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि उस डेफिनेशन को हम दे सकते हैं. हम बोल सकते हैं दैट व्हाट इज चार्ज. हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू to which develops, which is the responsible for the development of the electromagnetic force. आप समझ गए ना? अगर मैथ्स तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट अगर करना भी हो आप बोल सकते हैं कि मैथ्स जो है, जैसे आप बोल सकते हो अब मैथ्स क्या है? मैथ्स इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. आप समझ गए ना? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं चार्ज की एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, एक डेफिनेशन आ गई. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, आप वो बोल सकते हैं. फिलहाल एक से आप वल्नरेबल हो गए कि ये डेफिनेशन क्या है, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ काम, मैं आपके लिए बोलता हूँ बच्चों देखो इसको सीखने की कोशिश करो, बिकॉज आपकी लेवल
जो है वो हमारी सेकेंडरी लेवल होती है, तो इसलिए मैं इसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में लूंगा और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूंगा, ठीक है। जी सर। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन लूंगा, यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन लूंगा, देखिए अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन 2 लूंगा, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये रिपेल करेंगे विद सम फोर्स, उसका नाम मैं F1 दूंगा, सो F1 F1, ठीक है। अब अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये भी क्या करेंगे, इनका पॉजिटिव चार्ज इसका भी है, इसका भी है, ये भी रिपेल करेंगे। सपोज मैं इसका नाम दूंगा F2, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से प्रोटॉन लूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। विद सम फोर्स से मैं इसको F3 नाम दूंगा, ठीक है, ऐसे करूंगा, उसका नाम दूंगा F3। अगर मैं न्यूट्रॉन लूंगा यहाँ से, क्या हो जाएगा बताओ, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है, इनके बीच में मैं किस। तो अब मुझे बताइए आप बच्चों कि ये जो फोर्स है, मतलब ये चीज है जिसकी वजह से फोर्स आया, ठीक है, कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स, इन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ये कौन सा चीज है जो इनको ये फोर्स करने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन इस न्यूट्रॉन को नहीं कर रहा है। जो वो चीज है, जो वो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द चार्ज। आप समझ गए ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये वो चीज, वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज है, इसको रिपेल करने की जिम्मेदारी लेता है, इसको भी रिपेल करने की, यहाँ अट्रैक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। आप समझ गए, कुछ समझ गए चार्ज क्या है। अब हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो डेफिनेशन एक नहीं हो सकती, आपकी डेफिनेशन करेक्ट हो सकती है, लेकिन हम और मॉडिफाई होगी, यहाँ पर बोल सकते हैं दैट दिस चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं है, ठीक है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू विच आर एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। आप समझ गए ना, वेदर दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव और दैट फोर्स इज रिपल्सिव, वो अलग बात है, लेकिन हम बोल सकते हैं उस चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। अगर लाइक्स होंगे तो रिपल करेंगे, अगर अनलाइक्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आप समझ गए ना। इस तरीके से हम चार्ज की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या किया, नेचर ने हमारे लिए क्या किया, कि अंदर जो एटॉमिक सब एटॉमिक वर्ल्ड है, सब एटॉमिक वर्ल्ड, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द एंटिटीज आर देयर चार्ज, मोस्ट ऑफ द एंटिटीज आर देयर चार्ज। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एटम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज आर न्यूट्रल, सीम्स टू बी न्यूट्रल। आप समझ गए ना, क्योंकि वो बैलेंस हो रहे हैं। बिकॉज मैंने पहले ही बोला ये जरूरी था नेचर को ये मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ओके फाइन, आगे चलते हैं। अगर कोई आपको आप बोलेगा कि ये चार्ज जो है, आप इसको किस चीज में आप मेजर करते हो, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप उसको बोलना है SI यूनिट जो चार्ज का है, तो वहां पे आप बताएंगे SI यूनिट जो इसका है वो है कूलम। क्या है, C से हम इसको लिखते हैं कूलम, ठीक है। तो अगर CGS में वो बात करें, CGS वाला, तो इसका यूनिट जो है, या तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दे सकते हो, या तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दे सकते हो। यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप बोलते हैं स्टैट कूलम, यहाँ बोलते हैं एब कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर करते हैं आप, ठीक। इसके बहुत सारे और हैं, इसको आप फैराडे भी ले सकते हैं, एक यूनिट ये भी है फैराडे। डू यू नो फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? यानी ये कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है, ये किसी पैकेट में आता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो इसको और साइंटिस्ट आ गए उन्होंने और क्लियर कर दिया इसको कि वो क्वांटाइजेशन, वो क्वांटा है क्या। यानी जैसे हम मकान बनाते हैं, वो मकान ईंट का बना होता है, तो एक ईंट से फिर पूरा मकान बन जाता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज वहां पर ब्रिक, ठीक है, ईंट। इसी तरह जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हमने नाम दिया एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम दिया? एलिमेंट्री। तो जो इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। केमिस्ट्री वाले वो ज्यादा यूज करते हैं, वो हम ई से डिनोट करते हैं, ई फॉर एलिमेंट्री, ठीक है। वो एलिमेंट्री चार्ज है। और वो एलिमेंट्री चार्ज किसके बराबर होता है? वो एलिमेंट्री चार्ज जब हमें बोलते हैं कि किसके बराबर है, हम बोलते हैं, अगर कोई आपको बताए दैट्स 1.602, ठीक है, 16, ठीक है ना, 7 लाइक दिस, 7 तो फिर 208 समथिंग लाइक दिस, 10 टू द पावर -19 कूलम। ये है, ये वो यूनिट है, ये जो फंडामेंटल एलिमेंट्री यूनिट है, एलिमेंट्री। सो इस वक्त आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, नो डाउट कि अभी बोलते हैं कि इससे भी लीस्ट चार्ज हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट होता है। वो किसका है? वो क्वार्क्स का है, E/3 यानी 1/3 ऑफ दिस। लेकिन जो आपकी लेवल है, आपके लेवल में इस वक्त हम बता रहे हैं जो लीस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का है, उसको हम एलिमेंट्री चार्ज दे रहे हैं और वो इसके बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको प्रोटॉन का देंगे, प्रोटॉन का भी E है, ठीक है, इसका एलिमेंट्री चार्ज भी E है। देखिए अगर हम मैस की बात करेंगे, प्रोटॉन का मैस
अराउंड 1837 टाइम्स मोर है किसके, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन चार्ज इनका सेम है, सिर्फ क्या है एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का क्या है, तो प्रोटॉन का यही है लेकिन नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव 1.6 यही 0216772 इंटू 10 to the power नेगेटिव 19 कूलम, लाइक दिस, ये आप लिख सकते हैं। सो दिस इज दैट एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। अब ये जो फेराडे ने यूनिट दिया था, वो फेराडे के पास बन रहा था कि इतना, वो बोल रहा था 965 अप्रॉक्सीमेटली 0 कूलम पर मोल, ठीक है, पर मोल। और हम अगर पूरा लिखेंगे 96485.32 कूलम पर मोल, ये एग्जैक्टली है, ठीक है। अब देखिए मसला ये है कि ये कूलम क्या है, ये कौन सा चार्ज है। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आप लोगे, जो उसका चार्ज बनेगा वो उसको हम बोलते हैं फेराड, ये भी एक यूनिट है चार्ज का। सो आप किसी भी इसमें फिनिश करते हैं। अब मसला क्या है, अब हमारे पास मसला ये है कि मोस्ट ऑफ द एंटिटीज जो हमारे पास है, चाहे टेबल है चाहे चेयर है, ये न्यूट्रल दिखते हैं हमें, क्या दिखते हैं, न्यूट्रल दिखते हैं। तो अगर ये न्यूट्रल दिखते हैं तो फिर हम इसको चार्ज कैसे लाएं, हम फिर एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। हम, मैंने पहले बोला, हम वो रबिंग से कर सकते हैं, हम वो कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं, हम वो इंडक्शन से कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे ये बैलून है, इसको हम कर सकते हैं रब, ये अभी सर आपको देंगे ये बैलून, ठीक है। तो इसको हम रब करेंगे हेयर के साथ। ये इंसुलेटर है, हमने इसलिए इंसुलेटर लाया ताकि चार्ज यहाँ इक्विवेलेंट हो जाए। अगर मैं कंडक्टर लाता वो तो ड्रेन हो जाता है, ठीक है, और मैं भी कंडक्टर हूँ, मेरे में आ जाते। तो हम इंसुलेटर लाते हैं, तो हम इसको रब करते हैं। तो फिर सर आपको दिखाएंगे, हमारे पास एक पिटबॉल जैसी दूसरा है, ये भी इंसुलेटर है, कि कैसे ये इसको इंडक्ट करेगा चार्ज, फिर अगर दूसरा बैलून आप लगाओगे कैसे वो इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रबिंग से। अभी टाइम सर के पास होगा तो आपको ये दिखाएंगे, ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं। एनीवेज, ठीक है, ये आप समझ गए पूरा। सो व्हाट इज चार्ज, आप डेफिनेशन दे सकते हैं आप। सो 2 डेफिनेशन आपके पास आ गए। वन की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर है, ड्यू टू व्हिच इट डेवलप्स द व्हिच फंडामेंटल फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। और दूसरी बात मैंने बोला, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ईच अदर। तो इस तरीके से आप चार्ज की कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। सो मेनी मोर, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, आप दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जिसका मकसद है, गोल है, वो फोत नहीं होना चाहिए, वो रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं अब कोशिश करूंगा इसको आपको बोलने की प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, जैसे मैं बताया। चार्ज प्रॉपर्टीज क्या है, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखूंगा, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट ये कंजर्व्ड है, क्या है, चार्ज जो है ये कंजर्व्ड है, फाइन, ये कंजर्व्ड है, ओके, कंजर्व्ड से मुराद, हाँ मैं बताऊंगा कंजर्व्ड से मुराद मीन्स आप ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ एक चीज कर सकते हो, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, लाइक दैट, ट्रांसफर कर सकते हो, दैट्स नोन एज कंजर्वेशन, ठीक है। मींस आप इसको क्या कर सकते हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप चलोगे आप देखोगे फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस एटसेट्रा, केमिकल रिएक्शंस, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसमें चार्ज कंजर्व नहीं होगा। मैं नहीं बोलता हूँ चार्ज ही होना चाहिए वहाँ कंजर्व, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल केस। अगर ये नहीं होगा आगे चलने की कोशिश नहीं करनी है, आप समझ गए ना। जैसे मैं आपको बताऊँ एक रिएक्शन, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है 1 ये प्रोटॉन, ये सपोज हमारे पास हीलियम देगा, सपोज मैं मानता हूँ 2, और ये देखिए इसका चार्ज क्या है, ये जो है एक प्रोटॉन है ना, इसमें एक प्रोटॉन है, एक और कितने हो गए, 2, तो ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जी इसमें आ गया वो चार्ज तो कंजर्व हो गया, इसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन ऐड करके वही प्रोटॉन 2 यहाँ पर बनते हैं, तो इसलिए मैं सोच सकता हूँ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये चीज हुआ ही नहीं तो हमें आगे जाने की कोशिश नहीं करनी कि आगे बाकी कंजर्वेशन इसमें वैलिड है कि नहीं है। तो दिस टेस्ट इज द फंडामेंटल टेस्ट, यानी इसलिए मैं बोलता हूँ चार्ज कंजर्व रहता है। इसी तरीके से जैसे आप बैलून को अभी रब करोगे, वहां से जो नॉकआउट या आपके यहाँ हेयर से नॉकआउट इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो याद रख लीजिए जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे उतने पॉजिटिव हेयर आपको यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि चार्ज बैलेंस होगा, जब वो वापस आ जाएंगे वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये देखो ये बच्चे हैं ना, यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे, ये यहाँ पर जी सर, यहाँ पर एक डोम शेप्ड है, ये यहाँ पर हम चार्ज डेवलप करते हैं। ये लिबर्टी, एक बार फिर से दिखाइए। हाँ ये लिबर्टी साइंस सेंटर जो है यहाँ पर, उसकी फोटोग्राफ है मेरे पास, ये वाला, इस पे चार्ज था। इस लड़की ने जब इसके ऊपर हाथ लगाया, व्हेन शी टच्ड इट, तो व्हाट हैपेंड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसमें चले गए, ठीक है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। जब पॉजिटिव हेयर में डेवलप हुआ तो हेयर एक दूसरे के साथ रिपेल करने लगे। तो ये देखिए उसके बाल देखिए खड़े कैसे हो गए, जबकि दूसरी लड़की वहाँ खड़ा है उसके तो है नहीं। आप समझ गए ना, ये आपको दिखेगा यहाँ पर कि क्या होता है चार्ज की वजह से। ये फोटोग्राफ आपने देख लिया, ओके। सो
अब ये मैं बात आपको बोल रहा हूँ, और दूसरी बात आप याद रख लीजिए, इट्स नेगेटिव चार्ज विच एक्चुअली इज अ मोबाइल चार्ज। मोबाइल मतलब जो मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस में होता है, इसका जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। आज के बाद हमेशा आप रखोगे कि मोबाइल चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। इसीलिए जब लड़की के वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा यहीं से नेगेटिव, तो वहाँ नेट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जब गिलास रॉड को आप सिलिक के साथ रब करोगे, गिलास रॉड से क्या हो जाएगा, वहीं से ट्रांसफर हो जाएगा नेगेटिव, गिलास रॉड पे नेट पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिए। मोबाइल चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, याद। और मैं क्यों इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर पे स्टे होता है चार्ज, इसलिए मैं गिलास बोला, अभी बैलून बोला, ये इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज कंडक्टर पे क्या होता है, वो ड्रेन हो जाते हैं वो चार्ज। ठीक है, एनीवेज, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैं बताऊंगा क्वांटाइज्ड, अभी मैंने बताया था थोड़ा सा आपको कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रीट नेचर का है, यानी एक क्वांटा का बना, जो भी चार्ज एग्जिस्ट होता है वो उसी का मल्टीपल है। जैसे इस मकान में कितनी ईंटें लगी? 1000, इट इज 1000 टाइम्स ऑफ दैट वन ब्रिक। जैसे इसमें 10,000 ईंटें लग गई, इट इज 10,000 टाइम्स ऑफ दैट ब्रिक। आप समझ गए ना, वो यूनिट, यूनिट मतलब वन। तो इस तरह हम क्वांटाइज्ड क्या होते हैं, अगर चार्ज क्यों मानेंगे, कोई भी चार्ज हो वो n टाइम्स e होता है, चाहे प्लस या माइनस। ठीक है, E व्हाट इज E? इट इज द एलिमेंट्री चार्ज, इसी का वो मल्टीपल होगा। बिकॉज हमारे पास इस वक्त लीस्ट चार्ज यही तो एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए यही बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। तो अगर किसी में चार्ज हम बोलेंगे 2E, यानी ट्वाइस ऑफ दैट। अगर किसी के पास 4E है, 4 टाइम्स ऑफ दैट एलिमेंट्री चार्ज। इस तरीके से हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें क्वांटाइज्ड नेचर, डिस्क्रीटनेस आ जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड। ओके, नो पॉइंट। अब थर्ड है, थर्ड क्या है, दैट दिस इज एडिटिव। क्या है? एडिटिव। एडिटिव मतलब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 कॉलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कॉलम चार्ज है, सपोज +3। मैं बताऊंगा, बताइए टोटल कॉलम चार्ज, टोटल चार्ज इस पे कॉलम में कितना है, आप क्या बताएंगे? हाँ, आप बताएंगे क्या? 2 + 3 5। आप 2 × 3 तो नहीं बोला, वो 6 है। दैट मीन्स इट इज एडिटिव इन नेचर। क्या है? एडिटिव। वो मैं यहाँ पर टॉपिक नहीं छेड़ूंगा भाई, वो दूसरा मसला है। ठीक है, और देन अब फिर फोर्थ क्या है, इट इज बाई 2 पास। क्या है? बाई 2 पास। वो क्या मतलब है बाई 2 पास का, कि चार्ज के 2 किस्में हैं, 2 काइंड्स, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। जबकि मैथ्स में एक ही है, वो सिर्फ पॉजिटिव है। शुक्र है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। मैंने वही बोला कि ये जो मॉडल बनाया गया यूनिवर्स का नेचर ने, बहुत ही परफेक्ट मॉडल हमारे लिए है। ठीक है, एनीवेज, ये चार्ज का मसला हो गया। अब मैं किस पे आ जाऊंगा? पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है बेटा, कोई कुछ तो नहीं बताना है यहाँ पे? बताओ यार, अगर कुछ क्लियर नहीं है पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हुमैरा, आपका कोई क्वेश्चन है सर के लिए? माइक लेके। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हाँ, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा वो रेस्ट में रहेंगे। रेस्ट में जब चार्ज रहता है ना बेटा, ये याद रखना चाहिए, उसके पास एक ही फील्ड होता है। क्या होता है? दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। अगर उसमें मूवमेंट आई, जैसे कंडक्टर के ऊपर मूवमेंट या किसी ड्राइविंग फोर्स से हमने उसको मूवमेंट दी, बैटरी या किसी वजह से आई, उसमें एक और फील्ड जनरेट उसकी वजह से आता है, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों फील्ड क्लब हो जाते हैं, ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और वही आपकी करंट होती है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वहाँ एनर्जी के उस स्पीड पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह। हाँ, ओके फाइन। अब यहाँ पर क्या है कि मैं अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। फाइन बेटा, आप बताइए थोड़ा सा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं समझाऊंगा, नो वरी। ठीक है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैं आपको बताऊं। ये तो आपको सीधे ही पता चलता है नाम से, दैट ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नाम से ही पता चलता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो नाम है, मैं फिर से एनालॉजी लूंगा। अगर ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ है हमारी, और इसका मास कैपिटल M है, मैं कोई चीज़ यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ तक, उसका मास स्मॉल m है। ठीक है, क्या ये खुद ब खुद आ जाएगा? नहीं आ जाएगा खुद ब खुद। क्यों नहीं आएगा खुद ब खुद? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अट्रैक्टिव फोर्स है, वो उसको आने नहीं देगा ऊपर। तो मैं जब ये डस्टर उठाऊंगा, वाइपर मैं जब उठाऊंगा, मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेगा। टेबल और वेट हेवी उठाऊंगा, मुझे एफर्ट्स ऐसे खींच के लाना पड़ेगा, ऐसे खींच के लाना पड़ेगा। तो ये खींच के लाना मतलब आप इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क डन। तो आपने वर्क डन की, जब वर्क डन की, मैं मानता हूँ आपने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, पहुँचा दिया यहाँ तक वर्क डन करके। लेकिन अब क्या हुआ, जो आपकी वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। इसका मतलब वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ चली गई? जिस तरह कंजर्वेशन है ना चार्ज में, इसी तरह कंजर्वेशन एनर्जी में भी वैलिड है। अब वो एनर्जी कहाँ गई?
वो एनर्जी जो फील्ड है, इसका सोर्स का फील्ड यहाँ पर, उसमें वो स्टोर रहती है। कहाँ रहती है? बिकॉज दैट फील्ड इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। जैसे हमारे पास चार्ज बहुत ज़्यादा तो हम उसको ग्राउंड करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत पोटेंशियल होता है लेने का, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें वो एनर्जी रहती है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट में वो पोटेंशियल है कि वो उसको कन्वर्ट करेगा किनेटिक एनर्जी में, ठीक है, किसमें? किनेटिक और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें वो पोटेंशियल है, इसीलिए उस एनर्जी का क्या नाम दिया इन लोगों ने? इसलिए नाम दिया उसका पोटेंशियल एनर्जी। यानी उस एनर्जी में अब वो पोटेंशियल है कि वो उसको कन्वर्ट करे किसी और एनर्जी में, किसी और फॉर्म में। इसी तरह उसका नाम इसीलिए दिया गया पोटेंशियल एनर्जी। सो अब वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जब वापस आएगा, देखिए वो उसको मैं यू दूंगा, तो वो यू, ये डब्ल्यू और वो यू बराबर होंगे एक दूसरे के। आप समझ गए ना? अगर वर्क डन कोई बताएगा किसके पास होता है, वर्क डन जो है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप समझ गए? तो मैं जब यहां लिखूंगा दिस u नाउ इज इक्वल टू फोर्स के बदले में वो वेट है। कौन सा फोर्स नीचे की तरफ है? वेट है, हाँ mg वेट है। और डिस्प्लेसमेंट इस वक्त अगर मैं मानता हूं h है तो ये h बन जाएगी। सो दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये तो टॉपिक नहीं है, मैं एनालॉजी पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ इसकी एनालॉजी लेते हैं। चलिए हम यहाँ लेते हैं, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ मैं लेता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेट इट बी नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, और इसका चार्ज क्यों है? सोर्स चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ लूँ, छोटा मोटा सा पॉजिटिव चार्ज, वो खुद ब खुद ऊपर तो नहीं आएगा ना, नहीं। हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए इस एनालॉजी पे मैं बोल रहा हूँ, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो एफर्ट्स लगा के जो उसको हम बोलते हैं वर्क डन करना फिजिक्स में, हमने क्या की? वर्क डन। तो यहाँ पर जो वर्क डन की, अब इस चार्ज में वो पोटेंशियल है कि ये वापस को किनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और मैं मानता हूँ ये जो है, ये सपोज आर, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी आर होगी। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? हम बोल सकते हैं जो यहाँ वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट आर, मैं यहाँ यू नो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पर मैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लूँ, वो होगा जी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा जी क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर। ये होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलेंगे क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मामला सेम है, आप समझ गए ना। लेकिन अगर आप इनवर्स केस लोगे, यहाँ पॉजिटिव लोगे और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज लोगे, देखो इस वक्त खींचना नहीं है, इस वक्त आपको उसकी तरफ लाना है, बिकॉज वहां अपोजिट जा रहे हो आप। इस वक्त वहां नहीं जाना है, इस वक्त यहाँ आना है। देखिए इस तरह आपको वर्क डन करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब लेकिन अगर आप इसको छोड़ोगे, इसमें आप पोटेंशियल की वापस वो पोटेंशियल है कि इसको कन्वर्ट करेगा किसी किनेटिक एनर्जी में। ये याद, यही हमारे बैटरी में हो रहा है, यही हमारे कैपेसिटर्स में हो रहा है। वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, हम और धकेल देते हैं वहाँ पर, वो उसको उस फील्ड के साथ रिपेल करता है, हम तो और देते हैं ताकि वो वहाँ पर स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ गए बात को? देखिए यहाँ पर मेरा एक फोटोग्राफ है, ये देख रहे हो, ये मैन, ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रिंग को खींच रहा है। एक बार ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये फोटोग्राफ, ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं? इसके पास एरो एंड बो है ना, तो ये क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, इस तरीके से खींचने की कोशिश कर। देखो ये अगेंस्ट जा रहे हैं किसी फोर्स को, किस फोर्स को? स्ट्रिंग फोर्स, जो वो स्ट्रिंग है वहां पर। तो देखो अगेंस्ट गया ना, इसको एफर्ट्स लगाने पड़े तो वो हो जाएंगे, वो जो उसको बोलते हैं वर्क डन, वो वर्क डन वहां स्टोर हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वो उसको किनेटिक एनर्जी में, फिर हमने कौन सी किस एप्लीकेशन में लगाया वो अलग बात है, लेकिन मामला तो सेम है ना हर जगह। लेकिन यहाँ हम इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हम इलास्टिक के वहाँ पर हो गए अगेंस्ट। तो जहाँ पर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जाओगे, वहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उन एफर्ट्स को हम वर्क डन बोलते हैं, और वो वर्क डन हम कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। फिर वही नाम देंगे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पर इलास्टिक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप पोटेंशियल? अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट तो जूल है, वही जो वर्क का है, बिकॉज इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका क्या होगा ऐसा यूनिट? जूल, ठीक है। समझ गए आप? थोड़ा सा समझ गए आप? अब डेफिनेशन देनी पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, अगर मैं ऑब्जेक्ट और ऊपर खींचूं, बताइए वर्क डन ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज द लोकेशन बेस्ड, इट्स द फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन बेस्ड है, डिफरेंट पॉइंट्स पे इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। आप समझ रहे हो बेटा? डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको डिफरेंट। सो जब आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी की, आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी is energy possessed by an object by virtue of its position with respect to the source of field. with respect to the source of, जो source आपको फील्ड दे रही है उसके रेस्पेक्ट से, उसकी पोजीशन कहाँ है। अगर मैंने यहाँ चार्ज लिया, देखिए यहाँ लिया, ये तो दूर है यहाँ से,
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो W डैश होगा वो तो W डैश सीधे ही ग्रेटर देन होगा किसके W। आप समझ गए ना कुछ। सो दैट्स व्हाई आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ फील्ड, जो आपको फील्ड दे जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। आप समझ गए ना पॉइंट सुनो, इसलिए मैं इसको थ्रस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए अब देखिए, अब कोई और डेफिनेशन देता है, किसी बुक में इस तरह डेफिनेशन आते हैं, ये जो ये चार्ज है ना ये आता नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी इसको एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं यहाँ इन्फिनिटी देता हूँ, यानी जहाँ से लाया मैंने वहाँ नाम दूंगा इन्फिनिटी। कोई इसको ऐसे बोलता है वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी वर्क डन एट अ पॉइंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल। वो भी वही होगा ना। तो देखो ये अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपने अपनी बुक का तरीका लिखना। मैं वही बोलता हूँ, आप डेफिनेशन किसी भी एंगल से मोड़ सकते हो, लेकिन गोल वही रहना चाहिए। आप समझ गए ना। इसलिए वो दोनों डेफिनेशन आपके पास हैं, वो वाली आप 9th में यूज़ करते हो, ये वाले 10th 11th में यूज़ कर रहे हो, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, ये वन ऑफ द सेम थिंग। आप समझ गए ना। तो बेटा हम आगे अगर मौका मिले मैं आपको पोटेंशियल के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर हुआ तो बोलो, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे डिटेल्ड बात करेंगे। ये जो पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी मैंने बताया, ये वेरिएबल है, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करती है, वेरी। अगर मैं ये क्यू यहाँ लूँ, यानी मैं लिखूँ U डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू GQ डिवाइड बाई R, ठीक है। मीन्स दैट मैं ऐसे लिखता हूँ, पोटेंशियल इज नथिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज नथिंग बट इट इज U बाई क्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, ये बोलते हैं हम पोटेंशियल। इसीलिए हमारे सिलेबस में पोटेंशियल आते हैं। आप समझोगे अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी थी, ये पोटेंशियल का कंसेप्ट क्यों पढ़ना था हमें, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मैथ कुछ होगा, इस ऑब्जेक्ट का होगा। अगर मैं क्या बाहर निकालूँ, मास घटा कि बढ़ा, घटा ना। लेकिन अगर मैं वापस रखता हूँ, मैं बोलो इसकी डेंसिटी कुछ होगी, वेरी गुड, डेंसिटी तो होगी ना। हाँ, मैं ये निकालता हूँ, डेंसिटी क्या रही, सेम। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए मार्केटिंग इजी हो जाती है। किन टर्म्स में, कांस्टेंट टर्म्स में। इसीलिए जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज वो क्या है, जैसे आप, मैं इसमें सिखाऊंगा, यहाँ पर आपके 3 ब्रिक्स हैं, ये आपको ऊपर पहुंचाने हैं। एक ब्रिक पहुंचाई, पोटेंशियल एनर्जी U, दूसरी पहुंचाई, पोटेंशियल एनर्जी U, तीसरी पहुंचाई, पोटेंशियल एनर्जी U, टोटल में ये हो जाते हैं 3U। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना। लेकिन मैं अगर पोटेंशियल बोलूँ इस लेवल पे, पोटेंशियल क्या है, आप बोलोगे 3U डिवाइड बाई कितने चार्ज है, 3Q, वो कैंसिल हो जाएगा। देखो कांस्टेंट रहा, U बाई Q कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप समझ गए ना। इसीलिए हम ये कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये पोटेंशियल, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल। अगर टाइम मेरे पास होगा कुछ मिनट तो मैं, सर इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। हाँ, वही मैं बताऊँ। जैसे पोटेंशियल आपको समझ में आया, दैट मींस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपके पास घर में सॉकेट नहीं होते प्लग्स, उसमें लिखा है 120 वोल्ट, वो हमेशा 120 वोल्ट रहे। आप समझ गए। लेकिन ऐसा है जो आपके पास घर में प्लग है, देखो प्लग है ना ऐसे, जैसे ये 2 प्लग्स हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है 120 वोल्ट का है, आपने यहाँ से निकाली एक वायर, ठीक है, निकाली। यहाँ कोई बल्ब लगाया, जैसे आप ये लगाते हो बल्ब, वो ग्लो हुआ, तो यहाँ उसको पहुंच, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, देखो निकलेगा कि नहीं, यहाँ से होके जाएगा, ये लूज करेगा एनर्जी। क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। बिकॉज ये जो है पोटेंशियल इट इज U बाई Q। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है, इसका कूलम है, मींस जूल एनर्जी पर कूलम, कितना लॉस होगा यहाँ पर। और जब ये यहाँ वापस आ जाएगा, इसने यहाँ पर लॉस के यहाँ पर 0 है, इसने 120 वोल्ट लॉस कर दिया एनर्जी, 120 जूल पर कूलम, यानी एक कूलम ने 120 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर। तो अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, अगर ये 120 इनका तो सेम लगे, नहीं जाते। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दो जगह पे जब पोटेंशियल की डिफरेंस होगी तभी जाके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यही केस होता है हमारी स्ट्रीम में भी। अगर हम स्ट्रीम हमारे पास है, ऐसे चल रही है, बह रही है, तो आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ समझाता हूँ, मेरे पास अब कुछ मिनट बचे। ये देख रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं, जरा इसे फोकस कर रहे हैं। यहाँ से पानी आ रहा है, देखो पानी आ रहा है, यहाँ टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन इस पे जब गिरता है टरबाइन चला रहा है, यहाँ से फिर वाटर निकल। लेकिन जो एनर्जी वाटर यहाँ होगी वो एनर्जी यहाँ ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि इसने यहाँ पर तो डेनमो चलाया ना, इसने यहाँ पर वो चलाया, ठीक है, शाफ्ट चलाया। और जरा देखिए इसी की एनालॉजी में, ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ से एक प्लग निकल के चला जाता है। देखिए इस तरीके से, जो इसने मोटर चलाई, इसने इसके बदले में क्या चलाई, हाँ उसने बल्ब चलाई इसके बदले, ठीक है, बल्ब चलाई, फिर बल्ब से होके यहाँ वापस आ गई, ठीक है, और बिल्कुल वाटर की तरह। लेकिन जो एनर्जी वाटर की यहाँ कम है, इसी तरह यहाँ भी कम होगी, 0 पहुंचेगी, इसी तरह बिल्कुल इस एनालॉजी पे जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू टेक इन इंटरेस्ट इन दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, नो विदाउट एनी हेजिटेशन। विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, हमारे पास ये बैलून्स वगैरह हैं। यस, वी कैन डू द एक्टिविटी, वी कैन डू ये आप ले सकते हो बेटा, ये लो प्लीज। चलो प्लीज। हाँ, एक बच्चा आ जाए, एक बच्चा आ जाइए वॉलंटियरली। वॉलंटियरली
अच्छा बेटा, वेरी गुड बहादुर बच्ची प्लीज। अच्छा तबस्सुम आप भी इसका बैलून तबस्सुम का आप भी आइए। दीजिए, तो बैलून को जरा फूंक चढ़ाइए दोनों को। दोनों को इसको फूंक चढ़ाई बंद कीजिए, ये आपके पास, इसको हाँ। फूंक चढ़ाई बंद कीजिए। इसको रखिए अभी, वो बैलून को ही पहले थोड़ा सा पेंडुलम को नीचे रखें, थोड़ा आप यहाँ आइए बेटा, हाँ। तो आप थोड़ा यहाँ आइए, थोड़ा है आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, बस काफ़ी है इसको बंद करें। बंद कर दीजिए। ऐसे इसको दागे से नहीं, आपसे हाथ से बांध कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। फेस द कैमरा कैमरा भी, द गर्ल इन व्हाइट विल वहाँ फेस द देखिए कैमरा। अब मेरे बच्चों पास की तरह जरा मुझे दे दो, मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा, हाँ सर, देन यू विल प्रोसीड। मैं दिखाऊंगा, दूसरा वाला बैलून दे दो बेटा। अब इसे बंद हाँ। कर दीजिए। ये 2 बैलून है, आप जस्ट सी। अब मैं इनको यहाँ नज़दीक ला रहा हूँ, देयर इज़ नो इफेक्ट, है कुछ ना अब मैं अपने बालों से ही इसको रब करता हूँ, लेट मी रब इट। मैं अपने बाल से इसको रब करता हूँ, दोनों को। बाल कम है लेकिन आई थिंक दे विल वर्क। अब देखिए, सी अब देखिए, यहाँ से थोड़ी सी बैल इसमें कम, अब देखिए, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा इसको और करता हूँ, रिपल्शन हो जाएगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रबिंग से इनमें कोई प्रॉपर्टी आ गई। इस फिगर की तरह भी देख लेना, ये इसके साथ है। हाँ, आप इसमें देखिए, इसमें रबिंग से ये वाली देखिए कहाँ जा रहा है, हाँ, देयर इज रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते इट इज मूविंग अवे। जी जी तो मतलब ये हुआ कि मैंने 2 चीज़ों को, ये सिमिलर हैं, एक बालों के साथ ड्राई हेयर के साथ रब किया, तो इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। और फ्रिक्शनल एक ही किस्म की है, क्योंकि कोई दूसरा मटेरियल मैंने नहीं लगाया, जी। रिपल्शन। जी। अब देख लीजिए, अगर मैं बाल ले लीजिए वो वाला छोटा सा, अब देखिए, अब इसके साथ ये था थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल का थोड़ा सा पीस मैंने लाया जी। है आपके लिए। अब देखिए इसमें इफेक्ट क्या होता है, सॉरी। तो इसका फिर हम इसको रब करेंगे, so that electrical this charging takes place, electrification takes place, because charge we means electrification। अब देखिए, अगर इसमें चार्ज डेवलप हुई है और ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इंसुलेटेड है, सी कम चार्ज हुए, खींचना चालू है जी। अब देखिए, इसमें दूसरी बात, अगर इसमें चार्ज है, इसकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है। इसमें चार्ज है। और इसकी चार्ज की वजह से ये जो मेरा थर्मोकॉल का पीस है, इसमें इंडक्शन हो रहा है, इसमें चार्ज इंड्यूस हैव अ टर्म दैट्स कॉल्ड मैग्नेट इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इंडक्शन में अगर आपको पॉजिटिव प्लेट है, आपके पास एक प्लेट यहाँ लाएंगे, इसका इनर जो सरफेस है वो नेगेटिव बन जाता है, आउटर पॉजिटिव बन जाता है। ये मैग्नेट में भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये, मैग्नेट को आप एक पिन नज़दीक लाइए, उसका नियरर जो है, अगर नॉर्थ के पास है वो साउथ बनेगा, उसी वजह से वो अट्रैक्ट उसके साथ चिपक जाता है। अब देखिए, अगर इसमें यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें अपोजिट चार्ज पैदा हुई, तो ये इसकी तरफ खींच रहा है, मैं इसको मिला नहीं रहा, खींचने जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको टच करता हूँ, अब क्या होगा, अंदाज़ा करिए क्या होगा। अब इसकी चार्ज इसमें चली गई जी। अब दोनों में नेगेटिव आ गई, तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन। अब देखिए, इसमें चार्ज इस वक्त नहीं है, इसने खींची नहीं है, उसके बाद ये रिपल करना शुरू करे, क्योंकि इसमें अभी चार्ज, जब इसके साथ ये चार्ज, इसकी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाएगी, तो स्टार्ट रिपेलिंग, ठीक है। जैसे उसमें बैलून में फिर उस अगर इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, कहना ये है कि रबिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपके लिए एग्जांपल था, आप काम को देख लीजिए, छोटी छोटी तिनके अट्रैक्ट कर लेता है जी। एक दूसरी बात ये, आप मैं सिंपल एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ जो हम हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर आप देख लेते हैं, वो है जब शाम को आपके पास पॉलिस्टर की शर्ट लगी है, रात को निकालने के लिए आप उसको निकाल लेते हैं, तो स्पार्किंग Sparkling और साउंड भी आ जाती है, नॉइज़ जैसे आ जाती जी। है। इट इज़ व्हाट हैपेंस Just because of friction, चार्ज हो जाती है और आपको थोड़ी सी खुजलन भी आ जाती है। Because of the friction, I think the thing is very well understood, and शुक्रिया आप दो students का भी, और sir, we are really thankful to you for that glorious lecture. You may sit down and have a sip of water. It was a very energetic lecture. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे टीचर जो आज के हैं, सजाद अहमद मीर साहब, he is PhD physics from NIT Srinagar, and after that he has also done postdoctoral
फेलोशिप फ्रॉम शंघाई यूनिवर्सिटी, सो इट्स नो मीन फीट। और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारे तालीमी निज़ाम में, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में ऐसे असातिज़ा हैं जो इतनी तदही से पढ़ाते हैं और इतने हाईली क्वालिफाइड है। और रिसेंटली हमने टीचर्स डे भी बनाया, ए बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर हु टीच विद दिस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और खलील जिब्रान का एक कॉल मुझे याद आता है सजाद सर को देखकर, वो ये है कि रूट इज़ अ फ्लावर विच डिसडेन्स फेम, यानी कि जड़ वो गुलाब है जो जाहो हशम की तलब को इरादतन तर्क कर देता है। और वाकई इस चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं सजाद सर। और नाजरीन, अब प्रोग्राम का वो दिलचस्प मरहला आ चुका है जब हम आपके साथ जुड़ते हैं ऑन द टेलीफोन नंबर्स 248-1813 and 248-1832. Please do not forget to prefix 0194 in case you're calling from your cell phones or in case you're calling from outside the jurisdiction of district Srinagar. आपसे कनेक्ट होंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खातिन हजरात, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन नंबर्स 248-1813 और 248-1832। मलिक अल्ताफ साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मलिक अल्ताफ वेरी नाग अनंतनाग से अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में। जी, जो हमारे एक्सपर्ट साहब हैं मोहतरम पीरजादा ताहिर साहब और टीचर सजाद साहब, इन्होंने नहायत ही खुश असलूबी से आज का जो लेसन है इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज और पोटेंशियल के हवाले से जो इन्होंने यहाँ पर पेश किया, नहायत ही खुश असलूबी से लेसन पेश हुआ। और बिलखसूस उसमें जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स का जो जिसकी एग्जीबिशन हुई, नुमाइश हुई और टीचिंग लर्निंग मटीरियल का भरपूर इस्तेमाल हुआ, ये हमारे टीचर्स के लिए एक्चुअल क्लासरूम में मिसाल बन सकता है। चलिए, हमारे लेक्चर को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कोई सवाल है आपका? जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सर शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू। जैसे अभी हमारे सर ने आपको बताया कि एक जगह की बात जब हम करेंगे, पोटेंशियल की बात करते हैं जी, पोटेंशियल मीन्स वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी से पहले अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। और वर्क डन किसके खिलाफ? सर ने बताया अभी किसी फोर्स के खिलाफ किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब एक चार्ज की बात करते हैं, वो है चार्ज क्यू, इसका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई और चार्ज रखें, उसी जैसी तो रिपल होगा जी। अगर उसकी अपोजिट होगी तो अट्रैक्शन होगी। तो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, आई हैव ए चार्ज क्यू पॉजिटिव, आई एम जस्ट हैविंग अनदर चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू पॉजिटिव, तो जीरो, ये रिपल होंगे। सो मैं इसको यहाँ की तरफ ला रहा हूँ, इसके नज़दीक, इसके फील्ड के अंदर, फील्ड से बाहर तो इसका अट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। सो आई एम डूइंग वर्क। सो जो मेरा काम होगा, दैट गेट स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज बड़ी है, पोटेंशियल हम कहते हैं जब एक चार्ज की बात है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर लाएं तो पोटेंशियल लफ्ज दिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त जब बहुत सारी चार्ज और I want to add something quickly for my viewer is that actually voltage is nothing but it is a potential difference. It is synonymous to the word potential difference while we are using the voltage. जैसे मैंने सॉकेट की बात की, हम कभी बोलते हैं 120 वोल्ट का है, actually that is a potential difference. One terminal is at 0 volt, another is at 120 volt. When you take the difference 120 minus 0, it becomes 120. So it is synonymous to the potential difference. जी बिल्कुल, शुक्रिया इस जवाब के लिए। हम आपके ईमेल्स भी ले रहे हैं ddk-teleclassroom@gmail.com पे। और ये एक ईमेल हमें मौसूल हुआ है अशफाक हफीज़ साहब से, जो कि रहते हैं ब्रेन दानपुरा में। प्रोग्राम को सराहा है और आपकी टीचिंग को स्पेशली इन्होंने सराहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ईमेल। ये दूसरा ईमेल हमें मौसूल हुआ है समीर खान बारामुल्ला से, कहते हैं कि चलिए इनका ईमेल बाद में पढ़ते हैं, फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। एजाज अहमद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में। एजाज साहब, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Nice to watch this program. This was really a good one, but unfortunately I tuned in lately. But I have a question regarding the electricity. Please. Though I'm from medical stream biology, I teach biology. But hardly matters. Hardly matters.
I have a question. जी, Do electrons really flow, or is it energy that flows? yes, thanks a lot for that question. Do electrons really move, or is it just the energy that moves? Sir? बेसिकली शुक्रिया जब call हम करने के इलेक्ट्रिसिटी लिए। की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी दैट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इट है, आप अगर एसी की बात करते हैं, वी हैव द 50 हर्ट्ज रेंज. इलेक्ट्रॉन की मोमेंट्स होती हैं, जैसे एक वेव चलती है, पार्टिकल की मोमेंट होती है, उसके बाद ये वाइब्रेशन जो है एक से दूसरे से तीसरी जी। की तरफ चली जाती है. इट जी। इज़ लाइक दैट. तो इसमें वाइब्रेशन उनकी बढ़ जाती है, उससे दूसरे की वाइब्रेशन बढ़ जाता है और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जैसे वेव फॉर्म में होती है. लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट जो है जब डिटेल में आएंगे 10th के लेवल के लिए डिफिकल्ट If you want to chip in Yeah. quickly. So actually yes, electron जैसे उसने बताया, मैंने पहले ही बोला electron is a mobile. It was actually in my lecture. And हम positive charge mobile नहीं है. जी। Positive charge immobile. Actually क्या होता है कि जब हम कंडक्टर की बात करें जिसमें करंट चलती है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है that is 10 to the power -6 मीटर पर सेकंड. मीन्स मतलब कि बहुत स्नेलस रेस पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन. उस इलेक्ट्रॉन पे हम ग्लोइंग जो लाइट्स आपको दिख रहे हैं वो तो नहीं होगी ना. जी। एक्चुअली वहाँ से जो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ 2997112 मीटर पर सेकंड, उसकी वजह से वो जल्दी ग्लो हो जाता है. अदरवाइज जो उसकी फेस है वो कम है, बट वो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट. जी, समीर खान साहब हमें ईमेल करते हैं बारामूला से. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सर स्टेट्स दैट अ थिंग कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस डिस्टर्ब्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. डोंट यू थिंक यू कुड हैव स्टार्टेड योर लेक्चर विद दैट? इस पे आएंगे, लेकिन अभी एक कुपवारा से जुड़ चुके हैं कॉलर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में. अपना सवाल पूछिए. वालेकुम अस्सलाम सर. हमारा सर आज का सवाल है सर. जी सर हम सर ने सर अभी बताया जो सर ये सर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं सर. जी, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, राइट? हाँ सर. तो सर जो न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन्स होते हैं सर, जी, सर वो फिर रिपेल क्यों नहीं करते हैं सर? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो रिपेल क्यों नहीं करते? व्हाट डजंट दैट लॉ अप्लाई देयर, प्लीज? हाँ सर. और हम हमारा दूसरा क्वेश्चन सर ये है जी सर, जब सर हम थोड़ी ज्यादा टाइम से सर किसी सर कार में या किसी और गाड़ी में सर ये सर होते हैं सर, जी, तो सर फिर जब हम सर फिर कार से नीचे उतरते हैं सर, जब हम कार से किसी मेटल पार्ट को टच करते हैं सर, हाँ हाँ, तो सर हमें एक शॉक सा लगता है सर. वो क्यों होता है सर? वो हमें शॉक क्यों लगता है? Right. जी बिल्कुल. और आपके दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए. सर, देखिए, जहाँ तक पहले क्वेश्चन का सवाल जो ताल्लुक है, उसमें न्यूक्लियस की बात हो रही है. फंडामेंटल फोर्सेस में एक तो सर ने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जी, जो चार्जेस के दरमियान होता है, और ये चार्जेस जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज है उसमें ये जो लॉ है जो आपका फैराडेज जिसका कोलम्बस लॉ है वो वैलिड नहीं रहता. वहाँ पर एक और किस्म का फोर्स है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, जी, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो अवेलेबल है. जी। ग्रेविटेशन, ऑल द फोर्सेस जी। टेकिंग टुगेदर. और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये मेनली अट्रैक्टिव है. अट्रैक्ट मोस्टली इट इज अट्रैक्टिव, बट इट बिकम्स रिपल्सिव जब उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. कम हो जाती है. एक यूनिट है हमारा डिस्टेंस का, दैट इज फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर्स. जी, तो इस फर्मी जो साइज ऑफ न्यूक्लियस भी लगभग है, उसके अंदर ये जो फोर्सेस हैं, जी। न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, वो अट्रैक्टिव है. इसलिए उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी ये किस्म का, जैसे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं है. जी, 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी. और दूसरी बात थी इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये डिस्टेंस उसकी 10⁻15 के 0.6 पार्ट तक पहुंच जाती जी। है, देन इट बिकम्स रिपल्सिव. जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो न्यूक्लियस है जो अंदर है उनके, वो टच नहीं करते हैं, दे आर सेपरेटेड. क्योंकि नज़दीक पहुंचेंगे फिर आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाता है. सर कथा कलामी के लिए इंतहाई माफी चाहूंगा. अभी इकबाल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ त्राल से. अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में. इकबाल साहब अपना सवाल पूछिए. इकबाल साहब अपना सवाल पूछिए. लगता है कॉल ड्रॉप हो चुकी है. और हाँ, हम ईमेल पे थे. एक ईमेल था हमारा कि क्या दूसरा पार्ट? अभी एम के भट्ट जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से. खैर मकदम आपका सर. Hello, good morning to everybody. गुड मॉर्निंग सर. I am M.K. Bhatt speaking. I love and like the two questions in this universe. जी, Right from after God, I like Albert Einstein, the father of the theory of relativity physics, and I love Shakespeare the Great.
Now I want to put this question in physics. He has given a good lecture, potential energy. There's electromagnetic energy. There is electronic energy. I want to put this question. You have brought in an expert. If there is, for me, wrong, I'm not too much expert in this physics, but yet, because I read thorough reading, there are plated stones. Plated. When we give friction to the plated stones or plates of stones, there is energy of friction and there is electromagnetic friction. That one plate of that stone, we frict with the haphazard stone. What kind of energy? They repel each other. When two plated energy frict, even they attract towards each other. Why it is not attracting with haphazard stone that plate when we attract with that? I think that's a very good question you have asked, and thanks a lot for connecting to us. Thanks a lot for connecting to us. कि जो flint stones होते हैं जिनसे ना वो kind of वो rays निकलती है जब हम उनको attract करते हैं, दो flint stones आपस में टकराती है, आग जल जाती है, मगर एक flint stone को हम किसी आम पत्थर से टक्कर मार देते हैं तो उस टाइम ऐसा नहीं होता. सो दोनों प्रोसेस में क्या होता है सर? दैट्स व्हाट ही वांट्स टू आस्क. जैसे हमने पहले ही बताया कि फ्रिक्शन से चार्जेस जो हैं वो अपोजिट चार्जेस पैदा हो जाती हैं. एक में अगर पॉजिटिव चली जाती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में तो नेगेटिव चली जाती है. और अगर इनमें हेवी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है नेचुरली इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और अगर हम इनको नज़दीक हैं दे कैन बी ए काज ऑफ जस्ट स्पार्क. ठीक है. तो दूसरी बात में उसमें चूँकि ये डिपेंड करता है कि किस में टेंडेंसी ऑफ जस्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स है. कई मटेरियल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी नहीं वो बाउंड होते हैं तो उसमें डिफरेंस इसी तरह से आ जाता है. आई थिंक द आंसर हैज बीन वेल अंडरस्टूड. वी हैव शौकत शफी सर फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. मेरे उस्ताद रह चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम जमशीद जी. इट्स एन सर अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए. हाँ वॉल्यूम. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल जमशीद जी I would like to congratulate you for organizing such program. Today's program was very nice. Both the experts really delivered things to the best to the knowledge of the students, and I congratulate you for organizing such programs. Both the experts are very well versed in their respective fields. I would like to know from any of the experts how can we inculcate the spirit of what we say. Most of the students are not there is an abysmal decline in students opting for science and physics. How can we inculcate that love and that love for physics and mathematics among students? I would like to ask any of the experts. And जब आप मेरे टीचर थे तो मैथ कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का लव आपने इनकलकेट किया था हमें. सर आपका डेजिग्नेशन जानना चाहूंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में. I am presently deputy director looking after the internal quality assurance University of Kashmir. Well sir, thanks a lot for that call sir. Thanks a lot for that call sir. So nice. Okay sir. जी sir. How to inculcate the love of science among the students? Science and mathematics especially. Yes sir. Science and mathematics. शुक्रिया कॉल करने आपका शुक्रिया. बेसिकली ये ट्रेंड पैदा हुई है कई सालों से कि मैथमेटिक्स की तरफ रुझान जो है कम हो रहा है जी. साइंस की तरफ भी फिजिक्स की तरफ कई वजूहात हैं इसके लिए जी. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक सबसे पहली जिम्मेदारी एक टीचर की है जी जो इन बच्चों में वो इनकलकेट करे लाओ जी. और उसके साथ जैसे हम यहाँ पर आए हमने एक एक्टिव के जरिए बच्चों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की. जब हम क्लास में जाए that is good because science is not learned, it is done. It's done. Doing of science जो है वो इनकलकेट कर सकता है बच्चे में इंटरेस्ट. नाउ जी नहीं इसमें मैं शबीर सर से भी पूछना चाहूंगा कि सजाद सर से पूछना चाहूंगा कि जब आप शंघाई यूनिवर्सिटी में थे तो उनका साइंस पढ़ाने का क्या तरीका है? अब नेचुरली आपने वहाँ के स्कूल्स को भी विजिट किया होगा. हाउ डू दे टीच फिजिक्स टू द स्टूडेंट्स? एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ. वहाँ कोई ऑफ नहीं रहता है ऐसा जी. वहाँ जैसे स्टूडेंट हमारे साथ इंटरेक्ट हुए थे वो थे बड़े स्टूडेंट थे. वहाँ उनको एक कमरा दिया जाता है. उनके हम टेक केयर करने हमें वो अगर रात के 12 बजे उनको दिमाग में आया हमें पढ़ने के लिए जाना वो उस वहाँ जा सकते हैं. लैब में उनके पास मैग्नेटिक कार्ड्स होते हैं. वो मैग्नेटिक कार्ड यूज़ करके वहाँ पढ़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्लास टीचिंग कर. देखो फिजिक्स के लिए हमारी क्लास टीचिंग रहता है कि 4 का हो जाए तो हमारे लिए लैब हमारे पड़े हुए हैं. बड़ी बड़ी लैब्स दिए गए हुए हैं लेकिन वहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं असिस्टेंट लैब बेयर एटसेट्रा. फॉरवर्ड वो कोई क्लर्कल काम
काम करते हैं, जबकि उनका काम है लैब में बैठना, लैब के और बच्चों को लाओ, बच्चों के साथ इस माहौल में बैठो, बिकॉज साइंस इज बाय डूइंग। हम वहाँ उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते, हम उनको बिल्कुल घर का माहौल दे सकते हैं। कभी कभी क्या है कि चाय का कप भी दीजिए उनको अगर वो बोर हो जाते हैं, बिकॉज तभी वो लैब में बैठ सकते हैं। तो उनको एक शौक हो जाएगा कि हम ये कुछ कर रहे हैं बाय डूइंग, इट्स काइंड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, रादर देन हम क्लास में जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। पहले क्लास देंगे, थ्योरी वहीं पर पढ़ेंगे। मुझे लगता है वी शुड यूज लैब्स इन अ मोर प्रॉपर वे देन वी आर यूजिंग लैब्स इन अ मोर प्रॉपर वे। दैट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट टू मेक। अभी सईद आफाक साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैदरपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका आज के प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। सर क्वेश्चन था ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अलावा कुछ और चार्ज होने चाहिए, जैसे चार्ज ऑफ नियॉन नेफ्रॉन है, तो इसका मतलब बोले हमें ये क्या है? सवाल मेरी समझ में तो नहीं, अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज। वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो शुक्रिया कॉल करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बट ये है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये रिएक्शन मैंने दी, मैंने कहा चार्जेस कंजर्वेड, बट वहाँ यही कंजर्वेशन लॉ नहीं है। वहाँ पर बेरियानिक कंजर्वेशन लॉ वो भी होने चाहिए, मीजानी टाइप, सारे कंजर्वेशन लॉज आपके जब वैलिड होंगे तब वो रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, मैंने पहले ही बोला वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे वहाँ पर मीजान्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप जब न्यूक्लियर रिएक्शन लोगे वहाँ पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं कंसीडर करना है, जैसे लेप्टोनिक नंबर आपका कंजर्वेशन होना चाहिए, बेरियानिक नंबर आपका कंजर्वेशन, बहुत सारे कंजर्वेशन लाते हैं, तब जाके आप बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज वैलिड। जो आपके पास आती है वो वैलिड होके आ जाती है, उसमें सारे कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली वैलिड होते हैं। एब्सोल्युटली, ये बात है जी। हम ईमेल्स भी ले रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर इट्स यूजेस एंड कैन इट बी यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लॉस एंड हाउ? कुलदीप रैना जी ये लिखते हैं जम्मू से। बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर की बात इन्होंने की है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन जो एक जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चलती है, माने पानी में ऑब्जेक्ट है, लाइट वहाँ से जा रही है और एक यहाँ पर ऊपर एयर है, नीचे पानी है, लाइट यहाँ से जाके एक एट ए पर्टिकुलर एंगल, उसमें क्या होता है डेंसर से रेयर की तरफ जब लाइट जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। सो एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 से ज़्यादा चला जाता है। नेचुरली क्या होगा, वो यहाँ बाहर जाने के बजाय वो वापस आ जाती है। और ये जो फिनोमेना इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में। यस, उसमें यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए हमारी वेव्स लाइट वेव्स में कन्वर्ट होकर उसके जरिए जाती है, उसमें वो लॉस बहुत कम होता है। इसी से सटा हुआ एक सवाल है सजाद भट्ट साहब का, जो कि सुंबल से लिखते हैं, हमें कहते हैं कि डू मोर कॉइलिंग ऑफ लो टेंशन वायर्स, जैसे कि हम देखते हैं पोल्स के अराउंड ज्यादा लो कॉइल्स की तरफ होता है, तो डज इट लीड टू मोर फ्रिक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड टू लोअर वोल्टेज? ये उनका सवाल है। हो सकता है इनके गांव में कम वोल्टेज होता है, वहां पर मसला कुछ और है। देखिए इनको मैं बताऊं, मैं उनका सवाल समझ सका, तो क्या किस तरह का सवाल समझ सका मैं। जो हमारे पास एलटीज पड़े हुए हैं यहाँ पर, हम वहाँ पर एक वायर के बदले बहुत सारे वायर रखें, क्योंकि हमारे पास एक गॉसेस लॉ है कि वो बोलता है कि चार्ज जो है स्टे इनसाइड द कंडक्टर नहीं करता है, वो ऑन द सरफेस कर रहा है। तो उसकी वजह से जब आप बहुत सारे कॉइल्स एक साथ वायर देते, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आपका जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम आ जाएगी। इसलिए आप बढ़ाते हो कि एक वायर के बजाय बहुत सारे वायर है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो लॉसेस भी मिनिमम हो जाएगा। आई थिंक इस सवाल का आपने सही से जवाब दिया, और थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज एंड यू डिलीवर्ड अ रियली वंडरफुल लेक्चर, एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर ग्लोरियस illustrations, and thanks a lot for the students for coming to our program. Humaira, repeat timings. Yeah. Friends, before the conclusion of this show, let me remind you very quickly that you can watch the repeat telecast of this show twice in a week, first on Tuesday at 7:30 p.m. and on Thursday at 9:10 a.m. in the morning. And for further info, please follow our official Facebook page, Teleclassroom. और इसी दुआ के साथ कि नाजरीन आप जो भी करें, अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से हमकरार करे। दीजिए अपने मेजबान जमशेद रसूल और हुमैरा शफीक को आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज़।